Okay students, let's start with the active voice, passive voice, and we were discussing about assertive sense, and in assertive sense we have already completed the simple sense, the first part of the sentence. Simple sentence we have completed. Now it's turn to negative sentence. First of all, let me discuss the structure for negative sentence. Then the negative sentence structure would be, first of all you have to write subject, then there would be helping verb, then at third place always be not, and then main verb, and after that there would be object, and then etc. Okay beta, and I can say this would be format for active voice, this would be format for active voice. ये format जो होगा वो active voice के लिए होगा. And now the thing is that we have to change it into passive voice. Okay, if you find the structure like this, then how you have to change into passive voice? The structure would be like, first of all, according to the general rules, we have to use subject. We have to use subject in passive voice. And if you remember beta, the subject of passive voice would be object of active voice. Okay, the object of active voice would be used here as subject form of passive voice. Then you have to use helping verb. Okay, helping verb कौन सी होगी बेटा? passive की helping verb. ठीक है, जो मैंने टेबल फॉर्म आपको राइट करवाई अकॉर्डिंग टू दैट. एंड देन एट थर्ड प्लेस यू हैव टू यूज नॉट ड्यू टू द नेगेटिव सेंटेंस. And the third thing and the third general rules, if you remember, was that always third form of the main verb used in passive voice. Always third form of the use in passive voice. So here third form of the main verb क्या होगा? Third form of the main verb use किया जाएगा बेटा. And then after third form by is used. After third form by is used in passive voice. And then beta, the last one was the subject of active voice. The subject of active voice used as object in passive voice. Subject of active voice used as object in passive voice. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा object. जो कौन होगा बेटा? सब्जेक्ट का, सॉरी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा. देखिए, सो यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव सम एग्जाम्पल्स टू लेट मी अंडरस्टैंड. देखिए, तो देखिए बात करें हम सबसे पहले, ही does not listen me. He does not listen me. If I write he does not listen me, so the passive form would be like, passive form क्या होगी? सबसे पहले you have to identify the sentence. The first thing is that you have to identify the sentence. From which sentence it belong to? Let's see. First of all देखो बेटा क्या है? He pronoun है and working as subject here. Okay, then does is helping verb here, and then not, then listen is first form of the main verb here, and me is the objective case of the I. me क्या है? I का objective case है. Now the structure is like subject, helping verb, not, first form of the main verb, and then object. And here the same structure is here in active voice, subject, helping verb, not, main verb, object. If you find such kind of structure, you have to follow like this sentence. आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से फॉलो करना है, एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. सो लेट मी चेंज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, just recall the general rules that you have learned in first class. The first rule was object of active voice. Object of active voice used as subject in passive voice. एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा बेटा? सब्जेक्ट बनेगा. तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी है. मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई. मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? आई. ठीक है.
नेक्स्ट देखिए सेकंड थिंग क्या है, देखिए हमें क्या मिला, पेसिव का सब्जेक्ट मिला है। अब उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, एचवी की, हेल्पिंग वर्ब, किसकी, पेसिव की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है। बेटा एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है डज। डू और डज पेसिव में किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में। किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, एम आएगी या आर यूज की जाती है। इफ यू नो एम इज यूज्ड विद आई। आई के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, एम यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, आई एम नॉट। यू हैव टू जस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर एंड योर आंसर वुड बी एक्यूरेट। एंड देन नोट के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब क्या है बेटा, इसमें लिसन है। क्या है बेटा, लिसन। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब क्या हो जाएगी, लिसन। क्या हो जाएगी, लिसन हो जाएगी। तो आई एम नॉट लिसन, आई एम नॉट लिसन थर्ड फॉर्म होगी बेटा। आफ्टर दैट बाई, आफ्टर दैट क्या आएगा बेटा, बाई आएगा, बाई यूज करें। एंड देन पेसिव ऑब्जेक्ट, और पेसिव का ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन पेसिव वॉइस। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पेसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, बाई हिम। ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। इज दैट क्लियर? लेट मी गिव मोर एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए अब, दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट, दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट। लेट मी चेंज इनटू पेसिव। बिफोर दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है बेटा। देखिए दे आया है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्किंग एज हेल्पिंग वर्ब, नोट है तो नेगेटिव सेंस आ गया, एंड प्ले इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। प्ले क्या है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है। प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो देखिए क्रिकेट क्या आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। तो नोट आया है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ये किसको फॉलो कर रहा है, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो वी हैव टू फॉलो दिस particular structure while converting into passive voice. So first thing is that according to the general rule, object of active voice we have to use as subject in passive voice. active का object क्या है बेटा, cricket. active का object क्या है, cricket. so cricket can जो है वो tense related changes में आएगा बेटा. if you remember can is a modal verb, and if any modal is there in active voice it would be changed into modal plus be. किस में चेंज हो जाएगा बेटा, मॉडल प्लस बी में। तो कैन के साथ क्या आ जाएगा, कैन बी, बट देयर इज नॉट, तो आप बी को क्या करें, नॉट के बाद में राइट करें, कैन नॉट बी। ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। उसके बाद देखो बेटा क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। क्या हो जाएगी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी बेटा। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज बाई। क्या यूज करना है, बाई यूज करना है। और पेसिव का ऑब्जेक्ट कौन होगा, एक्टिव का सब्जेक्ट पेसिव का ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव में सब्जेक्ट क्या है बेटा, दे है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, he was not learning the poems. He was not learning the poems. देखिए बेटा ही सब्जेक्ट आ गया, वो जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या है, नॉट, और लर्निंग क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन द पोइम्स। तो वर्ब के बाद द पोइम है वो क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए लेट्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि
एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा द पोएम्स। ओके बेटा, क्या बना? द पोएम्स। अब यहाँ किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। अब देखिए वॉज और वर किस में चेंज होता है बेटा? वॉज बीइंग एंड वर बीइंग में। इफ यू फाइंड वॉज वर इज एम आर इन एक्टिव वॉइस, इट वुड बी चेंज इनटू इज एम आर वॉज वर प्लस बीइंग। यू हैव टू ऐड बीइंग व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस। क्लियर बेटा? तो पोएम्स क्या है बेटा? प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं? वर। तो हमें क्या यूज करना है इसमें? वर बीइंग, एंड इट वुड बी रिटन एज वर नॉट बीइंग। कैसे बेटा? वर नॉट बीइंग लिखा जाएगा। द पोएम्स वर नॉट बीइंग। क्लियर है? एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यू हैव टू यूज लर्न की थर्ड फॉर्म होती है बेटा लर्न। क्या होती है? लर्न होती है। एंड देन बाय, लर्न बाय, एंड देन क्या आएगा? अब ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा? पैसिव में एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, Rama had not deliver her speech. Rama had not deliver her speech. क्वेश्चन है Rama had not deliver her speech. Let me change into passive beta. First of all you have to identify the sentence and the speech of the sentence. ठीक है, इसके स्पीच को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रमा इज वर्किंग एज सब्जेक्ट हियर, हैड इज हेल्पिंग वर्ब हियर एंड नॉट गिविंग द सेंस ऑफ नेगेटिव, और वी कैन से नेगेटिव सेंटेंस दिस इज, एंड डिलीवर इज द मेन वर्ब एंड हर स्पीच इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हर स्पीच क्या है? ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यूज्ड एज सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में किसके रूप में काम में आएगा? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, हर स्पीच सेम लिखा जाएगा बेटा। हर इज पॉजेसिव हियर, हर इज पॉजेसिव केस हियर, नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? पॉजेसिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे हर स्पीच। क्लियर है? इफ इट इज वर हर ओनली, यदि यहाँ पे सिर्फ हर होता तो वो ऑब्जेक्ट होता, बट विद हर देयर इज स्पीच टू नाउन टू, तो ये क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस या पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया। ठीक है, तो ये पूरे के पूरा इधर आएगा हर स्पीच। उसके बाद देखिए बेटा हैड को चेंज करना है। हैड इज यूज्ड एज हैड बीन इन पैसिव वॉइस, तो हैड आ जाएगा बेटा, नोट है इसमें, तो हैड बीन के बीच में नोट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हैड नॉट बीन। क्या हो जाएगा बच्चा? हैड नॉट बीन। हर स्पीच हैड नॉट बीन, हर स्पीच हैड नॉट बीन। अब देखिए क्या आएगा बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्या जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और डिलीवर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिलीवर्ड। डिलीवर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है बच्चा? डिलीवर्ड हो जाती है। ओके, देन बाय वी हैव टू यूज बाय। फिर क्या जाएगा बेटा? बाय। क्या जाएगा? बाय, एंड देन एक्टिव सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो हमें क्या पहचानना है? एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है बेटा? रमा। इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नाउन है, तो रमा का रमा रह जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, next and last example for this sentence. If I write Gunjan did not
submit the notebooks. Gunjan did not submit the notebooks. Gunjan did not submit the notebooks. पैसिव देखिए, ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें गुंजन क्या है, वर्किंग एज सब्जेक्ट हियर, डिड इज हेल्पिंग वर्ब हियर, नॉट इज गिविंग द साइंस ऑफ नेगेटिव एंड सबमिट इज द मेन वर्ब ऑफ द sentence, and after main verb there is object, the notebooks is an object here. So first of all, object of active voice used as subject in passive voice. So beta the notebooks did जो है, if you find did in active voice then did is changed into was और were while converting into passive voice. did जब भी एक्टिव वॉइस में आएगा तो did चेंज हो जाएगा was और were में, बट ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज प्लूरल हियर, नोटबुक्स. ठीक है, नोटबुक्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल इन फॉर्म यूज की जाएगी. एंड आफ्टर दैट वर के बाद क्या रहा है बेटा, नॉट. नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस. सबमिट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, सबमिटेड. क्या हो जाएगी, सबमिटेड. क्लियर. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज बाय इन द सेंटेंस. इसमें क्या यूज करना है आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के बाद बाय यूज करना है. एंड पैसिव ऑब्जेक्ट हमें सर्च करना है, वो फाइंड आउट करना है. तो पैसिव का ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. तो गुंजन यहाँ पे क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Okay, let me give you some examples to solve at your home, or I can say for the homework purpose. You have to answer these questions or write it into your notebook. Practice exercise for home. लिखिए बेटा, राधा is not cooking food. Radha is not cooking food. Second one is she does not abuse me. Third one is Latika has not washed the clothes. And fourth one is Naitik will not play flute. Naitik will not play flute. Fifth one, Ridhima must take medicines. Ridhima must take medicines. Okay, you have to write it into your notebook and you have to answer these questions.
आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट ऑन गूगल क्लासरूम. ओके बेटा, थैंक यू.